शायद गुरुजी अगर इतनी हिम्मत ना देते तो मैं वाकई में मैं बहुत कमजोर दिल की हूँ, मैं इतनी आगे नहीं बढ़ पाती। आज जब भी मेरे को कोई ऑनर करता है, जैसे अभी मैं ग्वालियर गई थी, P2 वालों ने मुझे ऑनर दिया, तो मैं ये सोचती हूँ मैं इसकी हकदार नहीं हूँ। ये सब चीज के हकदार, आज जो मैं ये बनी हूँ, इस सब के हकदार गुरुजी हैं। और ये इसीलिए आप लोग को कह रही हूँ, मतलब हम लोग पढ़ाते सब चैप्टर में है, सब लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन जहाँ का मुखिया अच्छा होता है, क्योंकि गुरुजी खुद इतनी मेहनत करते हैं। हम जब पढ़ते थे अकेले गुरुजी खड़े होते थे और सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ा देते थे। इसीलिए मुझे लगता है इतने बिजी रहते हैं, इतने कर्म कांड करते हैं, उसके बावजूद भी गुरुजी ने खुद भी कभी भी फोन करे कोई भी स्टूडेंट, हम लोग को भी कहा हुआ है कि जब भी कोई फोन करेगा हमें उसको समझाना पड़ेगा। हम लोग की यही कोशिश रहती है कि हम आप लोग को लॉजिकली बता सकें कि ऐसा क्या है, ये तो बुक्स में मेंशन है, लेकिन ये क्यों है, साइंटिफिक रीजन हम बता सकें, लॉजिक बता सकें कि ऐसा क्यों है, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। और यहाँ से हम लोग आईकास ग्वालियर चैप्टर से बहुत लोग पढ़ गए, बहुत लोग अच्छा अच्छा नाम कमा रहे हैं, बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। इसीलिए जो भी नए जुड़े हैं, मैं चाहती हूँ आप लोग भी आइए, आप सबका स्वागत है यहाँ पे। और मेहनत हम लोगों की है, लेकिन उसके साथ में आप लोगों को भी हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग मिलके एक नया इतिहास रच सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं मिसेस देवयानी पुरी को आमंत्रित करती हैं कि वो शॉर्ट में आईकास का इंट्रोडक्शन दे। देवयानी पुरी आइए और इंट्रोडक्शन दीजिए। देवयानी जी आइए आप। Thank you, Alka Didi. Thank you, Guruji. And as Guruji told today, so many things about ICAS and so many things about the Gwalior chapter. In short, I am going to tell you some basic features of ICAS. First of all, I'd like to tell you the full form of ICAS. It is Indian Council of Astrological Sciences. Please pay attention to the last word, sciences. Not only astrology, but it is astrological sciences. So it is already clear that study here is based on science. Astrology itself is based on science. It is, as I studied here, I felt that here we studied the logical and factual science about astrology, which our ancestors has given us. So what is ICAS? I am telling you in short which courses are going on there. I am telling in short. ICAS is the platform, perfect platform for astrological practice and continued studying through several astrological courses. The ICAS was formed in November 1984 with a goal to establish an all-Indian body to ensure progress in astrological studies. ICAS is a formal registered apex body of top-notch astrologers of the country involved in imparting education, certification and examination of Vedic astrology. It's science as well as Vedic study. It was founded by Dr. B.V. Raman and now headed by Professor A.B. Shukla, IS retired. ICAS is providing following courses: Jyotish Praveen, 1-year basic course on Indian astrology in 2 semesters. Examination held in June and December every year. Jyotish Visharad, 1-year advanced course in Indian astrology with 2 semesters. Exams held in June and December. Jyotish Bhushan, equivalent to postgraduate research-oriented thesis program, duration 2 years, examination evaluation is thesis and viva. Nadi Praveen, 6 months course, Nadi Visharad, 6 months again, Hastarekha Praveen and Visharad, 6 months each, Vastu Praveen and Vastu Acharya, 6 months each. In spite of that, regular academic workshops, seminars, etc. held frequently online and offline on both bases.
And in the Gwalior chapter itself, the students are encouraged always to attend seminars, to prepare in the seminars, to bring PPTs, and with all. The Gwalior chapter always encourages students to come ahead. Not only theoretical studies, but practical studies also. So at such a platform, I welcome to all of you to come and join and feel proud to be the part of ICAS. Thank you so much. अलका दीदी. हाँ, थैंक यू देवयानी, आपने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया. अब मैं चाहूंगी कि जो भी नए स्टूडेंट हैं यहाँ पे, वो अपना वीडियो एंड माइक ऑन करके अपना इंट्रोडक्शन दे दें. गुरुजी, बहुत लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, पता नहीं क्या बात है. काफी लोग का मैसेज आ रहा है कि वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं. मैंने लिंक भी भेजा है दोबारा, लेकिन ज्वाइन नहीं हो पा रहे, पता नहीं क्यों. चलिए, जो भी हैं, मैं देवयानी जी, आप एक एक का नाम बोलते जाइए. जो नए हैं उनको पहले अपन वो इंट्रोडक्शन दे दें. कंफर्टेबल हो तो अपना कैमरा ऑन करके और बताइए कहाँ से हैं और कैसे यहाँ पे कैसे हैं. थैंक यू जी. मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं लोकेश मिश्रा जी. क्या आप अपने बारे में बताएंगे? जी बिल्कुल, धन्यवाद. आप सभी को मेरा प्रणाम. एक्चुअली मैं जैसे सर ने बोला, मैं एक्चुअली नया तो नहीं हूँ. आई एम ऑलरेडी एनरोल्ड विद पुणे चैप्टर में. पुणे चैप्टर से ऑलरेडी एनरोल्ड हूँ एंड मेरा P1 भी क्लियर्ड है. अभी P2 का मेरा एग्जाम था इनफैक्ट 11th को, बट क्योंकि मैं रिलोकेट हो रहा था फ्रॉम पुणे टू दिल्ली, तो मैं एग्जाम नहीं दे पाया. तो बट यस, आई विल अपीयर इन नेक्स्ट सेमेस्टर नाउ. So that's a short. Actually, my native place is Dehradun. मैं देहरादून से हूँ और मैं actually I'm from उत्तराखंड actually, North India. And मैं पुणे में बेस्ड था. पुणे में मेरी जॉब थी. अभी मैंने जॉब स्विच की है, तो अभी मैं दिल्ली आ गया हूँ. So I think that's short about me. In terms of knowing this knowledge, yeah, this science. ये विद्या मुझे बहुत पहले से ग्रहण करनी थी. ऐसा नहीं है, मेरे पिताजी भी हैं, वो भी काफी अच्छी एस्ट्रोलॉजी करते हैं. और मेरे जो नाना जी, दादाजी, इनफैक्ट जो मेरे नाना जी थे, ही वाज कुल पुरोहित फॉर द किंग ऑफ टिहरी. जो टिहरी के राजा थे, उनके कुल पुरोहित थे मेरे नाना जी. तो मेरा तो एक्चुअली एंसेस्ट्रल ये, हाँ जी, जी बिल्कुल. तो इसलिए मुझे, पर मैं बचपन से एक्चुअली कभी मौका नहीं मिला. स्कूलिंग थी, उसके बाद जॉब थी, समय की थोड़ी आपत्ति थी. बट अभी थोड़ा समय निकाला है मैंने पिछले 1 साल में, और अभी मैं P1 मेरा ऑलमोस्ट क्लियर ही समझिए आप. और अभी विशारद की तरफ मैं अग्रसर हूँ. बट अभी भी मैंने क्यों ज्वाइन किया है ग्वालियर चैप्टर, बिकॉज मैं थोड़ा मोटी बुद्धि का आदमी हूँ. सॉरी, मैं थोड़ा सा ऐसा है. मेरे को कोई भी चीज, मेरे को जब 10 बार पढ़ता हूँ तब मेरे समझ में आती है. तो इसलिए मेरे को रिवीजन चाहिए था एक्चुअली. तो उधर मेरे पुणे चैप्टर में आप जानते हैं कि हमारे जो आईकेएस के सबसे बड़े प्रतिबिंब है, वो आईकेएस के श्री कृष्णाचारी सर जी, गुरुजी हमारे. तो अब वो विशारद की क्लासेस लेते हैं, वो P1 की क्लासेस लेते नहीं है, P1 P2 की. तो फिर मैं सोचा कि मुझे रिवीजन करना है, तो मैं पुणे चैप्टर से दोबारा सोच रहा था रिवीजन करने की. बट देन वहां से मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, सो वही सेम स्टडी मटेरियल, सेम मेथड ऑफ स्टडी मुझे हेल्प नहीं करेगा एक्चुअली. तो फिर मैं सोचा मैं नोएडा का चैप्टर से ज्वाइन करता हूँ. बट फिर क्योंकि मैंने जब टेलीग्राम, कृष्णाचारी सर ने हमको एक्चुअली लिंक भेजा था गुरुजी का टेलीग्राम चैनल का, तो जब मैंने वो ज्वाइन किया, तो मुझे जो क्वेश्चन है, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट एक्चुअली. क्योंकि इतने डीप लेवल में क्वेश्चन पूछना, ये एक्चुअली उतना डीप में जाना बहुत जरूरी है किसी के लिए भी. यू नो कि कौन सी घर के कौन से कोनों में कौन सा ग्रह वास करता है, कूड़ादान में कौन सा ग्रह वास करता है, ये सब चीजों की बहुत बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है, निटिग्रिटीज. तो अब ऊपर लेवल में तो हर कोई जानता है, क्रम सबको पता हो जाते हैं. जब आप P1 कंप्लीट कर लेते हैं, आपको ग्रहों के बारे में नॉलेज हो जाती है, आपको भावों के बारे में नॉलेज हो जाती है. बट ये जो बहुत बेसिक्स नॉलेज होती है कि घर के किस कोने में कौन सा ग्रह वास करता है, भाइयों के लिए कौन सा ग्रह है, माता के लिए कौन सा ग्रह है, ये सब चीजें बहुत बेसिक जानना बहुत जरूरी है. इतनी तो मुझे टेलीग्राम चैनल से आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड.
विद द क्वेश्चनर। तो फिर मैंने अपना माइंड स्विच करके फिर मैंने गुरुजी से बात किया, तो गुरुजी ने फिर मेरे को अलका मैडम के साथ कनेक्ट किया, एंड टुडे आई एम हियर। सो होपफुली दिस रिवीजन वुड डेफिनेटली गोना हेल्प मी। And we expect कि you will fulfill your all expectation here. Thank you so much, ma'am. Thank you. Yes. Next मैं अलका दीदी, क्या वीपी पांडे जी नए हैं? आचार्य जी महाराज हैं कोई, उनको इनवाइट कर लीजिए। आचार्य जी महाराज जी, हाँ जी। आप प्लीज अपना नाम बता के और फिर आप अपने मैं मैडम वीपी पांडे आगरा से हूँ। अच्छा जी। तो मैं एक्चुअली में रिटायर्ड हूँ, और रिटायर्ड होने के बाद में थोड़ा सा ये शौक जागा इसका, ज्योतिष का। तो पिछले 2 साल से मैं 1-2 कोर्स जो प्राइवेट है वो भी किए, कुछ स्टडी वगैरह की। तो मैं एक्चुअल में पामोलॉजी में थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि क्या ऑनलाइन क्लासें आपकी पामिस्ट्री की चलती हैं, और क्या ऑनलाइन में सीख सकता हूँ पामिस्ट्री? तो इस बारे में थोड़ी सी जिज्ञासा थी, जानकारी, इसलिए मैं जुड़ा हूँ उससे कि आपके ये सारी क्वेरीज गुरुजी क्लियर करेंगे। जी। तो अगर गुरुजी ने कह दिया है कि ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे, वो तो गुरुजी आपको सिखाएंगे, बस ये नहीं, ध्यान मैंने कहा रखिए। मैं ये हाँ, हम लोग जिस पामिस्ट्री समय हम ऑनलाइन बोले, सीख हाँ, सकूंगा। ज्योतिष तो चलता है, नहीं, ज्योतिष तो किया है वैसे भी, हाँ कोरोना जी, में कर रहे हैं। हाँ ये जी, पामिस्ट्री क्या ऑनलाइन हो सकती है, ये मैं हाँ, थोड़ी सी वही जिज्ञासा थी। ऑनलाइन वही हो सकती है क्योंकि कैमरे पे जो हैंड है वो ज्यादा क्लियर दिखेगा। इनफैक्ट आप वैसे देखें, उससे ज्यादा कैमरा उसको ज्यादा फोकस कर सकता है। तो मुझे जी। तो उसमें ऑनलाइन बस क्लासेस में कोई सर मुश्किल ये नहीं। है कि अगर गुरुजी कह रहे हैं तो गुरुजी नहीं सिखा पाएंगे तो क्लासेस शुरू नहीं करेंगे, बस ये आप ध्यान रखेंगे। वो तभी शुरू करेंगे जब श्योर होंगे कि मैं अपने स्टूडेंट को सिखा दूंगा। नहीं, बस वही जानना था हाँ थोड़ा जी, हाँ, सा वो कि क्लियर ऑनलाइन करेंगे क्लासेस गुरुजी। चलेंगी। गुरुजी तभी क्लासेस स्टार्ट करेंगे जब उनको वो श्योर होंगे कि वो आपको केमिस्ट्री सिखा पाएंगे। ठीक है, जी। चलिए नेक्स्ट नाम लीजिए देवयानी। ये राज शर्मा जी। हाँ, राज शर्मा। हेलो। हाँ जी, जी, आप कैमरा भी ऑन कर लीजिए और माइक भी ऑन कर लीजिए प्लीज। मैम कैमरा तो मेरा खराब है। कोई बात नहीं, आप माइक से। मैम मेरा नाम राज शर्मा है, मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। जी, अभी क्या करते हैं आप? मैम मैं कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा सा ये यस भी मैम। बता दीजिए कि आपको ज्योतिष पढ़ने का इंस्पिरेशन कैसे मिला, कैसे आप ग्वालियर चैप्टर से जुड़े? मैम ये मेरे को मेरे पापा से मिला। मेरे पापा भी ज्योतिष सीखने जाते थे पहले, लेकिन मेरे पापा को कुछ प्रॉब्लम होने लगी तो वो बीच में से उन्होंने सीख नहीं पाया। तो उनकी अच्छा एक्सपेक्टेशन मेरे से थी, तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं तो नहीं सीख पाया, लेकिन तुम सीखो, तुम कुछ करके दिखाओ मुझे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने पापा जी की जो सपना है वो पूरा कर। उनको पूरा हाँ कर। वो इसलिए हाँ, मैंने उसी और में आप इन्वॉल्व हो गया। बहुत हाँ, कम एज में हैं, आप बहुत आगे जाएंगे। तो आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर से आप विद्या ग्रहण कीजिए। यस मैम, बिल्कुल। ये विजय ये कुमार महाराज जी मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, प्लीज आपको अपना अनम्यूट कर लीजिए और कैमरा ऑन कर लीजिए। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक म्यूट है। जी जी जी। सभी गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, दास का दंडवत स्वीकार करें। मैं आचार्य अजीत किशन शास्त्री, मैं वृंदावन से यहाँ ग्वालियर आया था। एक्चुअल क्या है, विशेषकर ज्योतिष जो आज की जो जनरेशन है, गुरुजी सुन रहे हैं आप? जी तो जी गुरुजी ने बहुत अच्छे से समझाया, और ऐसे गुरु के चरणों सानिध्य में रह के और भगवान की कृपा से तो कुछ ना कुछ जो जितने भी हमारे जो गुरुजन हैं जुड़े हुए हैं, सब को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। पहली बात। तो दूसरी बात यह है, ज्योतिष आज के युग में गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम जब स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं तब हमको ज्योतिष का नॉलेज होता है। और आज के समय में दीदी, मेरा कहने का मतलब ये है
कि ज्योतिष बहुत ज़रूरी है। और अभी मैं थोड़ा सा किसी के ग्वालियर में आया था, तो मैंने कहीं देखा बहुतों ने बोर्ड लगा रखे हैं ज्योतिष के, जैसे परम पूज्य श्री डॉक्टर त्रिभुवन उपाध्याय जी जो लक्ष्मीगंज मंडी में रहते हैं, वो मैंने उनको गुरु बना रखा है उनको। एक्चुअल अब उनके पास समय नहीं है सिखाने के लिए, तो मेरा एक उद्देश्य जगह कि चलो मैं कुछ ना कुछ ज्योतिष में सीखूं। तो अलका दीदी से मेरा संपर्क हुआ। मैंने एक्चुअल क्या गुरुजी की लिंक बताया, गुरुजी ने बताया मुझे, डॉक्टर त्रिभुवन उपाध्याय जी जो डिप्टी कलेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि आप इससे जुड़िए और आगे आपको बहुत अच्छा मिलेगा, और बहुत अच्छी आपके बारे में और अपनी इस संस्था के बारे में बहुत बताया। तो आज गुरुजी से मिलकर, आप सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे पे हमेशा कृपा बनाए रखें और मैं ज्योतिष सीखने की आगे करूँ। जी, आप इस संस्थान से जुड़े रहिए, आप खुद ही फील करेंगे आपने जो आपने आशाएं की हैं, जैसा आपको बताया गया है, उससे कहीं ज्यादा आप यहाँ पास हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम। जी, धन्यवाद। जी, ये विजय कुमार शर्मा जी। विजय कुमार जी प्लीज अपना अनम्यूट कर लीजिए माइक और कैमरे भी ऑन कर लीजिए। ऑन होल्ड है देना। यस, अभी तो ऑन होल्ड नहीं दिख रहे हैं। ये माया सिंह जी कौन है, इनको देखो। माया सिंह जी है। माया सिंह जी, यदि आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मुझे लगता है ये भी अनेबल हैं। एक मुझे नंबर नजर आ रहा है और लेकिन ही इज रिक्वेस्ट टू ज्वाइन, अभी वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। AD260763 नाम नहीं है इनका, बट ये ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। क्या और भी, ये जय लक्ष्मी साहू, आप दीदी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है, सॉरी। ये तो V1 की है जी। अलका जी, जी गुरु जी। हाँ, जय लक्ष्मी साहू जी तो पुरानी है। हाँ वही और मैंने बोला। हाँ जी, मेरे ख्याल से नए लोग हो गए हैं, तो पुराने लोगों को फैकल्टी रूप में और अनुभव के रूप में आप बुलवा लीजिए। हाँ जी ठीक है गुरु जी, सबको जय बुलवा लक्ष्मी देते हैं। साहू जी, आप आप अपने बारे आप में तो सभी को अलका जी, आप तो सभी को जानती हैं। हाँ जी गुरु जी। जी, सबसे पहले मैं धर्मेंद्र भारद्वाज जी को आमंत्रित करती हूँ, आए और बताएं कि इस संस्था से उनको क्या मिला और अब वो अपने स्टूडेंट्स को क्या देने वाले हैं। ये बहुत ही हमारे संस्था के होनहार है, बहुत मेहनत करते हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है। तो आए और बताएं अपने बारे में। धर्मेंद्र भारद्वाज जी आइए। सबसे पहले गुरु चरणों में कोटि कोटि नमन, और योगीराज शैलेंद्र शर्मा के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। इन्होंने यहाँ पर आके मेरे को बहुत कुछ मिला जो कभी मैंने सीखा नहीं था, और मेरे को इतने अच्छे गुरु जी थे, परमेंद्र गुरु जी, के चतुर्वेदी जी, अलका मैडम, और इन लोगों ने काफ़ी कुछ दिया। और वही मैं प्रयास जो मैंने इकट्ठा करा उसको मैं अपने सहपाठियों को और छोटे मंडी में सीखने आए, मैं उनको देखना चाहता हूँ। पूरा मैं अपना पास जो खजाना मैंने गुरुजी से एकत्रित किया है, उस खजाने के चुनिंदे मोती में आगे भेंट करना चाह रहा हूँ। यही 2 शब्द है मेरे पास, और कुछ नहीं। मैं किशोर सर को आमंत्रित करती हूँ, जबकि वो इलाहाबाद में है। बहुत शुरू से, जब से आईकास चैप्टर हुआ, गुरु जी के साथ हैं वो, और अपना इतना बिजी शेड्यूल के बाद भी वो क्लासेस भी लेते हैं और चैप्टर का बहुत सा काम करते हैं। किशोर सर, आप थोड़ा सा बताइए हमें। किशोर सर हैं? हेलो। हाँ जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है सर। गुरु जी, सर्वप्रथम गुरु जी को चरण स्पर्श, मेरे सहपाठियों को और मेरे इसको फैकल्टी को, सभी को मैं तीर्थराज प्रयागराज से नमन कर रहा हूँ और सभी की सुख कुशल कामना कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना अच्छा संचालन किया। बड़ा खुशी होती है जब हम लोग आप लोगों को आगे करके अपने चैप्टर के जितनी भी बागडोर है आपको संभालने को देते हैं, तो आप उसको सकुशल तरीके से संभालती हैं। बहुत अच्छा लगता है।
तो आगे जैसा ये गुरुजी ने आज ज्योतिष के बारे में आप लोगों को बताया, आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि 80% गुरुजी ने आध्यात्म के बारे में बताया। जैसा हम जानते हैं, आध्यात्म ज्योतिष का एक बहुत बड़ा रूप है। जब तक आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते तब तक आप ज्योतिष नहीं सीख सकते, क्योंकि जब वो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा वही ज्योतिष सीख पाएगा और कर पाएगा। तो इसलिए आध्यात्म तो इसका एक अंग है, और इस आध्यात्म को आज गुरुजी ने बहुत अच्छे तरीके से ज्योतिष के रूप में जोड़कर बताया। जहाँ तक ज्योतिष की बात है, जैसा भी आप अगर इसके वर्ड को तोड़ेंगे, ये ज्योति प्लस ईश, यानी कि जो ज्योति हमको ईश की ओर ले जाए, जो ज्योति हमको परमात्मा की ओर ले जाए, जो ज्योति हमको रास्ता दिखाए, वही ज्योतिष है। तो जो हमको रास्ता दिखाती है आने वाले कल का, आने वाले भविष्य का, जो हमको बताती है हमारे पुराने कर्मों का, हमारे पुराने भविष्य का, पुराने वर्तमान का और पुराने हमारे बीते हुए टाइम का, तो उसको हम ज्योतिष के रूप में देखते हैं। ज्योतिष एक ऐसी चीज है, ज्योतिष एक ऐसा साधन है जो जीवन के हर पहलू से जुड़ा है। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र को नहीं बता सकते जिसमें ज्योतिष का योगदान नहीं। बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने से ही वो ज्योतिष से जुड़ जाता है। ज्योतिष के जितने 12 भाव हैं, अगर आप हमारे जितने सहपाठी हैं सबने पढ़ा है और पढ़ा रहे हैं, नए लोग जुड़े हैं वो भी इन चीज़ों को जानते होंगे। ज्योतिष के जितने भी 12 भाव हैं, प्रत्येक भाव जब बच्चा जन्म लेता है उसके पहले ही भाव से उसका समझ लीजिए ज्योतिष स्टार्ट हो जाता है। पहला भाव, प्रथम भाव, उसका जन्म है। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, आज मैं आपको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हमारी लाइफ से ज्योतिष किस तरह से जुड़ा हुआ है। सेकंड भाव में आते आते बच्चा जब बोलना सीखता है, बच्चा जब खाना सीखता है, तो जैसे हम जानते हैं द्वितीय भाव को क्या बताता है, द्वितीय भाव वाणी का कारक है, द्वितीय भाव भोजन का कारक है। तो जो वो बच्चा जब सेकंड हाउस तक आते आते किसी न किसी प्रकार से बोलना सीखता है, खाना सीखता है। जैसे ही तृतीय भाव में थोड़ा बड़ा होता है तो बच्चे में थोड़ा सा चलना, उसका पराक्रम, उसका थोड़ा सा बल जैसे जैसे बढ़ता जाता है, तो उस तरह से ज्योतिष का जो तृतीय भाव जो कि पराक्रम का कारक है, वो बच्चा उसको आते आते तृतीय भाव के रूप को ग्रहण कर लेता है। चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव क्या है, माँ का सुख है, वाहन है। तो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, उसकी प्राथमिक शिक्षा, अगर हम किसी की प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव कारक है। पंचम भाव पे आते आते बच्चे की बुद्धि, बच्चे का विकास, बच्चे की बुद्धि का विकास, ये सब, और उसकी आगे की एजुकेशन, जिसको हम अगर प्राइमरी एजुकेशन कहें, उसके आगे की एजुकेशन कहें, तो पंचम भाव तो आते आते कितना तत्पर हो जाता है। जब इन चीज़ों को बढ़ते बढ़ते आगे बच्चा या कोई भी मनुष्य जब आगे बढ़ता है, तो जैसा हम जानते हैं किसी भी क्रिया के विपरीत उसकी प्रतिक्रिया होती है। जब हवा चलती है तो उसके विपरीत भी कुछ ना कुछ बल आता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब वो जीवन में आगे बढ़ता है तो उसके विरोधी सक्रिय होते हैं। तो वो चाहे विरोधी उसके शरीर के हों, चाहे विरोधी उसके जीवन के हों। तो अगर शरीर के विरोधी होंगे तो क्या होगा, बीमारी। तो छठवां भाव आते आते, तो छठवां भाव विरोधी है, छठवां भाव कंपटीशन है, छठवां भाव बीमारी है। तो इस भाव तक आते आते बच्चा इन चीजों को सीखने के लिए तैयार हो जाता है। अगला भाव जो कि लग्न का ठीक 180 है, सप्तम भाव। सप्तम भाव पर आते आते उस व्यक्ति को, उस बच्चे को कहीं ना कहीं से अपनी अर्धांगिनी या अपने जीवन का पार्टनर या बिजनेस का पार्टनर कहना चाहिए, एक आधा जीवन, आधा चक्र, कुंडली का आधा चक्र उसका वहां पर पूर्ण हो गया। यहाँ से उसकी अगली यात्रा प्रारंभ होती है। जहाँ वो अकेला था, आज वो अपने साथ एक अपनी अर्धांगिनी को, या अगर बिजनेस है तो पार्टनर को लेके आगे बढ़ता है। अष्टम भाव, क्योंकि जिस तरह से जब ये कठिनाइयां आ रही हैं, विरोधी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, उन कष्टों को भी झेलना पड़ेगा। धीरे धीरे आगे बढ़ता है नवम भाव की ओर। अब उसका भाग्य, तो अभी तक तो उसने कितना कर्म किया था, वो कर्म जुड़ के कहीं ना कहीं से उसके प्रारब्ध के रूप में उसको
भाग्य के रूप में परिवर्तित करेगा। तो उसके भाग्य जो कि उसके पुराने जन्म के जो कर्म है उसके आधार पर भाग्य, जो अभी कर रहा है उसके आधार पर भाग्य, वही उसका धर्म है, वही उसका पिता है। तो कहीं ना कहीं उसको अब आगे इस एज पर पहुंचना है, ऐसी कंडीशन पर पहुंचना है जहां उसको धर्म रास्ता दिखाए, उसका पिता उसको रास्ता दिखाए और आगे के जीवन की ओर बढ़ता चले। आगे की यात्रा करते करते वो दशम भाव पे आ रहा है। दशम भाव जैसा कि उसका आजीविका है, उसका कर्म है, उसका बिजनेस है, और कहीं ना कहीं से उसको अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ चीजों की आवश्यकता है। उसके लिए वो दशम भाव है। जब वो मेहनत कर रहा है, आजीविका कर रहा है, कुछ ना कुछ कमाने के लिए कर रहा है, तो प्राप्ति उसकी 11वां भाव है। 11वें भाव तक आते आते उसको जितनी जीवन की होगी, उसकी जितनी भी मेहनत है, उसकी प्राप्तियां उसको वहां प्राप्त हो रही हैं। अंत में और लास्ट में उसका 12वां भाव है। कहें तो उसका मोक्ष है, कहें तो उसका व्यय है, जो उसने कमाया था वहां उसने खर्च करना है। तो इस तरह से जीवन चक्र जो उसका जन्म के प्रथम भाव से स्टार्ट हुआ था, वहीं 12वें भाव पे आते आते पूरा हो गया और नई यात्रा की ओर चल पड़ा। और उसकी आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेने के लिए आतुर हो रही है। और वही चक्र जो उसने कर्म जितने भी यहाँ पर संचित कर्म किए थे, उनको अगले जन्म में ट्रांसफर कर रहा है, जिसके आधार पर उसको एफडी के रूप में जो भी मिलेगा वो अगले जन्म में मिलेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि ज्योतिष को आप अकेला छोड़ ही नहीं सकते। जैसा भी बताया था कि ये साइंस है, ये चूंकि जो दिख रहा है, साइंस क्या है, जो हमको दिख रहा है, जिसको हम प्रैक्टिकल रूप में स्वीकार करें, वो साइंस है। तो ज्योतिष भी ऐसा है जो प्रैक्टिकल रूप में बताता है। अगर हम उसको सूत्र लगाकर उसको कैलकुलेटेड करके अगर बताते हैं तो वो हमारा ज्योतिष हमको साइंस के रूप में उसका आंसर देता है। हमारे यहाँ आईकास में और दूसरी संस्थाओं में, या कहना चाहिए दूसरी जगह में, केवल इतना अंतर है कि आप ज्योतिष तो एक पॉकेट किताब से या जो अपनी छोटी छोटी बुक आती है उनसे भी पढ़ सकते हैं। और ज्योतिष आप आजकल वीडियो, लोग कहते हैं अगर मैं तो वीडियो से देख लूंगा, यूट्यूब पे बहुत मौजूद है। लेकिन आप अंतर समझिए, आप एक बार हमारे यहाँ 1 महीने क्लास लेके देखिए और एक क्लास आप वीडियो की लेके और पॉकेट बुक्स की पढ़ के देखिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। वहाँ की पढ़ाई और हमारी पढ़ाई, हम ज्योतिष को पूरे साइंस के रूप में पढ़ाते हैं, ज्योतिष को एक वैदिक रूप में पढ़ाते हैं, किसी को न डराने के रूप में नहीं, किसी को भ्रम जाल में फंसाने के रूप में नहीं, केवल और केवल समाज की उन्नति या कोई ये व्यक्ति जो परेशान है उसकी परेशानी दूर करने के आधार पर, और एक साइंस के रूप में। क्योंकि हमारी संस्था में जितने लोग जुड़े हैं, जितने भी आज जो हमारा लेवल, ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं से कोई आईएएस है तो कोई जज है, और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी जगह से आए हुए हैं, जिन्होंने अपने शौक के रूप में इसको अपनाया है और इसको एक शौक के रूप में ही दूसरों की ओर प्रसार करना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमारी संस्था में पढ़ने का आप सबको, मैं समझता हूँ, केवल और केवल यही कारण रहेगा कि हम इसको एक साइंस के रूप में लेकर भावना से, या एक सच्चे किसी बेसिक नॉलेज से लेकर उसके गुण अर्थों को समझाने से, और साथ में चूंकि हमारी संस्था न केवल ज्योतिष के रूप में, बल्कि हमारे गुरुजी कर्मकांड है, संस्कृत की कक्षाएं हैं, न जाने कितनी चीजों को इसके साथ साथ सिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो हमारे यहाँ क्लासेस न केवल ज्योतिष की, बल्कि कर्मकांड की, संस्कृत की शिक्षा की, आदि सभी क्लासेस लगती हैं। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि आप लोग हमारी संस्था से जुड़ें और अपना भविष्य और अपना नाम रोशन करें। धन्यवाद। धन्यवाद किशोर सर। किशोर सर मेडिकल डिपार्टमेंट में है, बहुत बिजी शेड्यूल के बाद भी इतनी अच्छी, और जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो कोई नहीं पढ़ा सकता, टफ सब्जेक्ट इन्होंने तीनों लिए हुए हैं। और आज भी देखिए इलाहाबाद में होते हुए भी वो हमारे साथ हैं। हम लोग जब भी उनको फोन करते हैं, जब भी कहीं अटकते हैं, उनसे राय लेते हैं, वो कभी मना नहीं करते और हमें मार्गदर्शन करते हैं। इसके बाद मैं V1 की स्टूडेंट दिशा को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और संस्था के बारे में कुछ हमें बताएं, उन्होंने क्या सीखा। ये वैसे बहुत अच्छी स्टूडेंट है। एक बार मैंने इनको पढ़ाते हुए कहा था कि आप लोग अच्छे नंबर लाइए, मेरे से प्रॉमिस करिए,
तो मुझे लगेगा मेरी मेहनत सफल हुई। उन्होंने कहा जी मैम, हम जरूर अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और उन्होंने अपना वादा निभाया। आइए दिशा जी, अपने बारे में बताएं। जी थैंक यू मैम। सभी गुरुजनों को प्रणाम, और सभी को जय गणपति। कि मैं दिशा मनावत, प्रवीण 2 अभी मैंने किया है। और मुझे ऐसा लगता था यहाँ पर आने के पहले कि हाँ, ज्योतिष में काफी कुछ केवल मेष राशि से लेके मीन राशि तक ही तो है, और है ही क्या। लेकिन एक्चुअली यहाँ आने के बाद पता पड़ा कि ज्योतिष एक्चुअली है क्या। और मुझे ऑनलाइन क्लासेस होने के बाद भी कभी यहाँ पर महसूस ही नहीं हुआ कि हम टीचर से कहीं दूर हैं। हमेशा सारे गुरुजन हमारी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। किसी भी तरीके की उनसे सहायता आप ले सकते हैं। और केवल यही वजह है जो यहाँ पर पढ़ाई कंटिन्यू करने का मन करता है, अंदर से मन करता है। और बस इसी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मैं और आगे बढ़ते रहना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। दिशा जी थैंक यू। अब मैं ये कुणाल गडकरी जी हैं, इनको आमंत्रित करती हूँ, आए। ये भी हमारे V2 कर चुके हैं और बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं। अब तो ये पढ़ाते भी हैं, जब भी इनको मौका मिलता है क्लास भी ले लेते हैं, हर समय हर जगह तैयार रहते हैं। आइए कुणाल जी, और अपने बारे में बताइए। जी, जय गणपति की सभी को गुरुजनों के चरणों में बिल्कुल मेरा सादर प्रणाम, और आप सबको शुभकामनाएं। और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्यों सीखना चाहिए ज्योतिष? सबसे पहले तो ये जरूरी है कि क्यों सीखना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। तो मेरा ये मानना है कि ज्योतिष शुरू होता है आपके अंदर से। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, बोलिए आप। थैंक यू मैडम। ज्योतिष शुरू होता है आपके अंदर से। तो ज्योतिष जब हमारे अंदर से शुरू होता है तो सबसे पहले क्या चाहिए? क्या हम ज्योतिष को सिर्फ सीखें या ज्योतिष से प्रेम करें, उसको जीना सीखें? मेरा हमेशा से ये मानना है कि आप ज्योतिष से प्रेम करो, उसको जीने की कोशिश करो। ये जो नवग्रह हैं, इनसे सबसे पहले दोस्ती करो, मित्रता करो। बृहस्पति देव हमारे मित्र है, शनिदेव हमारे मित्र हैं। तो ये एक मेरा शुरू से एक फंडा रहा है सीखने पढ़ने का। मैं इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। अब एस्ट्रोलॉजी जो है वो इतना डीप साइंस है, इतना गहरा साइंस है कि उसका संबंध 8th हाउस से, 8वें घर से। और काल पुरुष की कुंडली में जब तक आप स्कॉर्पियो को नहीं देखोगे, वृश्चिक राशि को नहीं देखोगे, तब तक आप ठीक से एस्ट्रोलॉजी को समझ नहीं पाओगे। तो मैं एक मतलब मैं छोटा मुंह थोड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ, सॉरी, आप उसके लिए माफ करना। आप सब बड़े विद्वान लोग हैं, मैं तो बहुत नीचे के कैटेगरी में आता हूँ। मुझे कुछ ज्यादा ज्योतिष आता नहीं है। गुरुजनों की कृपा से और आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से मैं कुछ सीख पाया। लेकिन स्कॉर्पियो को बेटर करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? स्कॉर्पियो एक रिजिड साइन है, वेरी डोमिनेटिंग साइन। वहां पे काल पुरुष की कुंडली का लग्नेश जाके मर जाता है वहां पे मंगल। तो इससे हमें क्या मालूम हुआ कि मंगल ही जन्म लेता है और मंगल ही मरता है। और चूंकि स्कॉर्पियो जो डोमिनेटिंग साइन है, तो मेरा एक हमेशा मानना है कि बॉडी में आपके विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं जो तरल पदार्थ है, वो जरूर होना चाहिए, जिससे आपका स्कॉर्पियो बेटर हो सके। ये मैं कहना चाहूंगा। और स्कॉर्पियो के बारे में एक और बात बोलना चाहूंगा कि जब तक सफरिंग नहीं होती पूरे हमारे जीवन में, तब तक आप सेल्फ डिस्कवरी नहीं कर सकते। तो स्कॉर्पियो वो सफरिंग है, और उसकी सेल्फ डिस्कवरी करने के लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा। अर्जुन के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट था गीता में कि इसमें महाभारत के युद्ध में कि मैं कैसे उठाऊं इनके खिलाफ शस्त्र। तो भगवान ने इतना सुंदर बात बोली है कि हे अर्जुन, ये मरे नहीं है, ये मरेंगे नहीं, ये तो ऑलरेडी मर चुके हैं। जो कृष्ण के विरुद्ध गया, जो गीता के विरुद्ध गया, वो पहले ही से ही मर चुका है। जो अपने खिलाफ जाने को तैयार हो, जो अपने वृत्तियों के खिलाफ जाने को तैयार हो, कृष्ण सिर्फ उसी के लिए है, और गीता सिर्फ उसी के लिए है। तो मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा कि जब अर्जुन को अंतर्द्वंद चल रहा था, तो भगवान की जब उसने शरणागति की, कंप्लीट सरेंडर किया, भगवान के सामने डिवोशन उसने अपना दिखाया, तब उसने फिर एक बात बोली, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तद प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्रापस्यसि शाश्वतम। तो
कंप्लीट सरेंडर करना चाहिए भगवान के सामने। आप जिसको भी मानते हो, आप ईश्वर को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, मैं गुरुदेव दत्तात्रेय की बहुत आराध्य है, गुरुदेव दत्तात्रेय, तो उनकी शरणागति जरूर करो। और स्कॉर्पियो साइन को समझे बगैर, स्कॉर्पियो साइन को पैटर्न के बगैर ज्योतिष किसी को भी करना चाहिए, क्योंकि वो स्कॉर्पियो साइन नेचुरल 8th हाउस है, उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो डोमिनेटिंग साइन है, मंगल का साइन है, मंगल ही जन्म लेता है, मंगल ही मरता है। धन्यवाद। थैंक यू कृणाल जी, आपने बहुत अच्छा समझाया कुंडली को। बहुत खुशी होती है जब हम लोग बोलते हैं, लगता है हमारे गुरुजी का हमारे पे बहुत आशीर्वाद है जो हम सब बोल पा रहे हैं। अगर इतना अच्छा गुरुजी ना समझाए तो हम लोग नहीं बोल पाए, जब आप लोग बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। अब मैं आमंत्रित करती हूँ P2 की स्टूडेंट प्रियंका सिंह को आए और बताएं आईकास में आके उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आइए प्रियंका जी। जय गणपति की सभी गुरुजनों को और सादर प्रणाम मेरा। मैं तो इसमें आईकास में मतलब एस्ट्रोलॉजी में काफी टाइम से सीखना चाह रही थी, बट अलका मैम के थ्रू मैं इसमें जुड़ पाई और सबसे अच्छी सुविधा थी ऑनलाइन की, हम कहीं भी बैठे हुए इसमें जुड़ सकते हैं। मैं इंदौर में रहती हूँ, मैं बहुत टाइम से एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहती थी, लेकिन जस्ट बिकॉज टाइम नहीं होने के कारण कि कनेक्ट कैसे हो, लेकिन ऑनलाइन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जिसके कारण हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। और क्लासेस इतनी टाइम टू टाइम, और गुरुजी ने तो इतनी एक्स्ट्रा क्लासेस लेके और इतनी हेल्प की हम सब लोगों की कि आज मतलब हम सक्षम हैं, P1 इतने अच्छे से कर पाए हैं, लग रहा है कि कुछ सीख पाए हैं, कुछ नॉलेज हो पाया है। सभी गुरुजनों का आशीर्वाद है बस। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू। अब मैं V1 की स्टूडेंट रुचि भाटिया को आमंत्रित करती हूँ, आए और संस्था के बारे में 2 शब्द बोलें और अपने बारे में बताएं। रुचि जी आइए आप। जी मैम, जी मैम। सभा में उपस्थित सभी गुरुजनों को, साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं V1 की छात्रा हूँ रुचि भाटिया और मैं वडोदरा से हूँ। आईकास ग्वालियर चैप्टर से जुड़कर मैं सबसे पहले अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि इतने अच्छे गुरुजन अलका मैम, चतुर्वेदी सर, किशोर सर, सबके सानिध्य में रहकर हमको ज्योतिष सीखने का ही नहीं, जीने का अवसर मिल रहा है। यहाँ की सबसे अच्छी बात गुरुजन की ये है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जीरो से स्टार्ट करके एक एक स्टेप आगे बढ़ाया जाता है। जैसे माँ एक उंगली पकड़कर बच्चे को चलना सिखाती है, सभी गुरुजन पूरा सपोर्ट करते हैं। और सबसे अच्छी बात हमें कहा जाता है कोई जल्दबाजी नहीं है, धैर्य के साथ एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पर सिर्फ हमको ज्योतिष नहीं, हमारे सर्वांगीण विकास, आपको किसके सामने किस तरह से बात करनी है, क्या बोलना है, पॉजिटिविटी से पूरी तरह हमको भर दिया जाता है। तो मैं सिर्फ आप सभी गुरुजनों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू रुचि जी। अब देवयानी जी, आपको कोई और दिख रहे हैं तो नाम लीजिए, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं, देखिए कोई और है तो। जी दीदी, प्रियंका सिंह आ गई। हो गए हाँ प्रियंका। देखिए आरती है क्या? रुचि भाटिया। हाँ आरती शर्मा है। आरती शर्मा जी है। नमस्कार मैम, जय गणपति की। जय गणपति की। जी मैम, मैं प्रवीण पास आउट हो चुकी हूँ और आप अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए प्लीज। अच्छा जी, जय गणपति की मैम, नमस्कार। सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमस्कार। मैं P1 P2 पास हो चुकी हूँ और विशारद में जा रही हूँ। आईकास से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे तो ज्योतिष बहुत कम आता था, लेकिन हाँ अध्यात्म में बहुत रुचि थी, इसलिए इससे जुड़ी तो बहुत कुछ सीखा। जैसा सोचा नहीं था उससे ज्यादा सीख लिया मैंने। फिर भी आगे कुछ इतना कुछ सीखना है, ये सोचती हूँ जितना पढ़ा जाए उतना कम है। ज्योतिष बहुत आगे तक ले जाता है। ज्योतिष शास्त्र है क्या या क्या था, हमें कुछ ही नहीं पता था। यहाँ आने के बाद हमें इतना कुछ पता चला कि बहुत गहराई है, गहरा कुआं है, डूबते जाओ, इसमें खोज करते चले जाओ, फिर भी आप उसकी तह तक नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा रिसर्च है, बहुत शोध है।
लेकिन जितना भी सीखते हैं अपने आप में बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ हमने कुछ सीखा, हम किसी को कुछ राह दिखा रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं और अपने लिए भी पा रहे हैं, अपन भी सकारात्मक हो रहे हैं, लोगों को बहुत अच्छी सोच दे रहे हैं कि नहीं ऐसा समय नहीं। हर किसी में एक जिज्ञासा होती है कि हम आगे बढ़े, कोई पीछे नहीं देखना चाहता, आगे सब देखना चाहते हैं। भविष्य में हमारा बच्चा क्या करेगा, हम क्या करेंगे, हमारे घर में ऐसा होगा वैसा होगा, सभी जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं, तो सभी लोग जानना चाहते हैं। और उससे अवगत कराने के लिए ज्योतिष बहुत ही अच्छा मार्गदर्शक है जो लोगों को आगे का रास्ता दिखाता है कि आपके साथ आगे ऐसा होगा, आप धैर्य रखिए, धीरज रखिए, अपने आप में संयम रख के आप अपने गुरुजनों के सानिध्य में आइए और आगे पूजा पाठ कर्म अध्यात्म में जुड़िए। ज्योतिष है कि अगर मैं कहूँ तो सूर्यादि ज्योतिषाम ग्रहणाम बोधक शास्त्रम, यानी कि ज्ञान के वो ग्रहों की स्थिति, उनके भ्रमण काल और उनका सब कुछ पड़ने वाले प्रभाव को हम ज्योतिष कहते हैं। लेकिन ग्रह आपके खुद के कर्म पर निर्भर करते हैं। हमारा कर्म, हमारे जो हम नित्य करते हैं, आगे जो करने जा रहे हैं और जो कर आए हैं, उसी से हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ है। वो ही हमारे भविष्य, वर्तमान और भूत बनाने वाले, और इसी से हमें आगे बढ़ने का मार्गदर्शक मिलता है। तो मैं यही इतना मेरे गुरुजनों से सीखा है और आगे भी उनसे प्रार्थना करूंगी और आगे सिखाएं। मुझे यहाँ ज्योतिष सीख के बहुत खुशी हुई। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गणपति की। नमस्कार। थैंक यू आरती जी, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा बोला। ये इतने बिजी शेड्यूल, बच्चे, जॉइंट फैमिली, उसके बाद भी इन्होंने इतनी मेहनत की। और सबसे बड़ी बात है, ये हमारी गुरु बहन है, लेकिन इन्होंने कभी हमें महसूस नहीं करवाया, एक स्टूडेंट की तरह बिल्कुल अच्छे से क्लास में वैसे ही पढ़ी है। और जबकि ये बहुत बचपन से करती रहती थी गुरु जी के साथ ज्योतिष, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत ही मेहनत की है इस यहाँ तक पहुँचने के लिए। धन्यवाद आरती जी। और देवयानी जी, आप देखिए कोई दिख रहा है तो, नहीं तो फिर दीदी अब तो कोई नहीं दिख रहा है। अगर रुचि भाटिया आना चाहें तो रुचि बोल दिया, रुचि ने बोल दिया। अच्छा, रुचि देवयानी, रुचि बोल तो दिया। हाँ, कोई भी नहीं नजर आ रहे हैं मुझे। चलिए अब गुरुजी बताइए, अब और कुछ या बस सवा गुरुजी? नहीं, अगर हो गया हो तो आज के लिए सर्वे बोल कर दो। हाँ ठीक है, और ठीक है। आज आप ग्रुप में सभी से मेल आईडी ले लेना, जैसे कि अगली बार जो लिंक बनेगा उसमें सबका मेल आईडी डाल देना, तो जिससे कि ज्वाइन होने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। देवयानी, आप लास्ट आभार प्रदर्शन करके और ये कर दीजिए। जी, सर्वे बंद तो करवा। हाँ जी जी गुरुजी। तो मैं आप सभी का जो भी यहाँ पे जुड़े हैं, वो हमारे शिक्षकगण हैं या हमारे नए आज के गेस्ट हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ, आभार करती हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय से समय निकाला और आज के हमारे कार्यक्रम को उन्होंने सुना, धैर्यपूर्वक सुना और हमारी संस्था है उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया। तो सभी का और गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक जो वो समय दे रहे हैं और आज भी उन्होंने इतना अच्छी जो हमको आध्यात्म की शिक्षा दी, उसके लिए किशोर सर का धन्यवाद, जो हम आज तक हमें हमेशा ही उपलब्ध रहते हैं हम लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और इतना जो स्टूडेंट्स के लिए वो हेल्प करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी जो नए गेस्ट आज आए हैं उन लोगों का सभी का धन्यवाद और स्वागत है। तो आज मैं अपनी आईकास कोकिला को, दिशा जी को आमंत्रित करती हूँ, आए और सर्वे भवन्तु सुखिनः करें। इनकी आवाज बहुत अच्छी है, आप लोग भी सुनिए। दिशा जी। जी जी, थैंक यू मैम। सर्वे